नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तानी सबी खान को एप्पल कंपनी का नया CEO किया गया मुकर्रर। छह नए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की शिरकत, दी मुबारकबाद। कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया है धोखा, इसे जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में सबक सिखाना होगा। अक़लियती कायदीन से हरीश राव का खिताब। गैस कटर की मदद से हैदराबाद के 3 ATMs में की गई चोरी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। गुजरात में पुल टूटने से 9 अफराद हलाक और कई जख्मी, वज़ीर आला ने अफसोस का किया इजहार। गुजरात और बिहार में बार बार पुल टूटने के वाक़यात पर KTR का तंज, तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। अब पेश है ख़बरों की तफसील। सबी खान को एप्पल कंपनी का नया चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO मुकर्रर किया गया है। वो इस माह के आखिर में अपना ओहदा संभाल लेंगे। सबी खान गुज़िश्ता 30 साल से एप्पल से वाबस्ता है। इस वक्त वो कंपनी के नायब सदर है। CEO टिम कुक ने इनकी कायदाना सलाहियतों और सप्लाई में अहम किरदार की तारीफ़ की। सबी खान 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदा हुए और 10 साल की उम्र में सिंगापुर मुंतकिल हो गए और उन्होंने अमेरिका में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। 1995 में एप्पल से जुड़ने के बाद उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलमी सप्लाई और मुलाजिमीन की फ़लाह बहबूद में नुमायाँ किरदार अदा किया। हैदराबाद में मुनक़िदा 6 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट महकमे में अहम ओहदों पर तक़र्रियाँ कर रही है। उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए इन्हें अवाम की खिदमत और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए सरगर्म किरदार अदा करने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि ट्रैफ़िक क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर सख्ती, शऊर बेदारी और जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से आवाम को बेहतर सहूलियात फ़राहम की जा रही है। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि रियासत में सड़क हादसात में ज़ख्मी होने वालों के लिए कैशलेस इलाज की सहूलत और ख़ुसूसी तरबियत का अमल जारी है। తెలంగాణ రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఉద్యోగం పొందినటువంటి 96 AMVAలకు 4 నెలల శిక్షణ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అప్ప రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి పోలీస్ అకాడమీలో రవాణా శాఖ తరఫున పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా శిక్షణ ఇప్పించి ఈరోజు పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ జరిగింది. ఈ కొత్తగా నియమింపబడ్డ AMVAలు కానీ రవాణా శాఖలో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులందరి ఆకాంక్ష ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్న సంఖ్యను తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం. వెహికల్ ఫిట్నెస్ కావచ్చు, డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కావచ్చు, పిల్లల్లో సహా తీసుకొచ్చి రవాణా శాఖ తరఫున కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి కొంత నియమ నిబంధనలను కఠినంగా చేస్తూ రవాణా శాఖ పనితీరును మెరుగుపరుస్తూ ఎక్కడ కూడా యాక్సిడెంట్స్ లేకుండా కొంత క్రమశిక్షణతో మెలిగే విధంగా ఈరోజు ఈ శిక్షణ ఉపయోగపడుతుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. తప్పకుండా నూతనంగా ఈరోజు AMVAలు శిక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికమైనటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి విప్లవం కావచ్చు, లేదా శారీరక దారిద్ర్యం కావచ్చు, నూతన చట్టాలు కావచ్చు, క్షేత్రస్థాయి ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో శిక్షణ పొంది ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో రవాణా శాఖ ప్రత్యేకమైనటువంటి విధి నిర్వహణలో ఈ రాష్ట్రంలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటుందని రవాణా శాఖ మంత్రి ఆకాంక్షిస్తూ ఇదే విధానంగా గతంలో దాదాపు ఉద్యోగం చేస్తున్న ఒక 300 మందికి కూడా కొంత చట్టాల పరంగా, శారీరక పరంగా, అదేవిధంగా మారుతున్న సాంకేతిక రకంగా కూడా వాళ్ళకు కొంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనే దాని మీద కూడా వాళ్ళందరికీ కొంత కాలాన్ని శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. తప్పకుండా అందరూ శిక్షణతోటి, క్రమశిక్షణతోటి రవాణా పరమైనటువంటి అంశాల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా పనిచేసేటువంటి ప్రయత్నం కొనసాగిస్తాం. హైదరాబాద్ నగరంలో CNG వాహనాలు చాలా లక్షల వాహనాలు అయినా సార్, దాని తగ్గట్టు బంకులు లేవు సార్. దీనికేమన్నా అది వాస్తవము. గతంలో ఇప్పుడు RTC కూడా CNG బస్సులు తీసుకొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నా CNG
సరి అయినటువంటి సరఫరాకు సంబంధించిన కేంద్రాలు అవసరం ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కు నిన్ననే ఆర్టీసీ దాదాపు ఒక 87 ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం. అట్లనే సిఎన్జి పరంగా కూడా మరి కొత్తగా కొన్ని కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం తరఫున ఆలోచన చేసి ముందుకు తీసుకొని పోతాం. तेलंगाना भवन में मुनक़िदा BRS अक़लियती विंग के इजलास में साबिक़ वज़रा टी हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अक़लियतों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। रमज़ान तोहफ़ा, KCR किट, फीस रीइंबर्समेंट और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए हैं, जबकि अक़लियती नुमाइंदों को काबीना में भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत में अक़लियतों को इज़्ज़त व सहूलतें दी गई। शादी मुबारक, इमाम व मुअज़्ज़िन के वजीफ़े, अक़लियती इदारे और दीगर फलाही स्कीमें सिर्फ BRS हुकूमत ने दी। रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वो ख़ुद BJP स्कूल के तालीमी याफ्ता बताते हैं, ऐसे वज़ीर आला पर अक़लियतें भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कांग्रेस ने जो जो बात बोले किया क्या, आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। लोग बहुत गुस्से पे हैं, लोग मौके के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस कांग्रेस को सब्र सिखाने के लिए लोग तैयार है, लेकिन अपना जिम्मेदारी है उनके पास गए, उनको समझाए, उनको याद दिलाए कांग्रेस ने क्या क्या धोखा दिया है। समझाने का जिम्मेदारी अपना है, याद करने का जिम्मेदारी अपना है। लोगों को अब मालूम हो रहा, जब KCR साहब थे खुश थे लोग, शादी मुबारक मिला, KCR किट मिला, बच्चे टिमरिस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए मौका मिला, पहली बार इंडिया में इमाम मौसम साहब लोगों को तनख्वाह दिया, रमजान महीने में तोहफा मिला, ऐसा बहुत कुछ काम किए। सबसे ज़्यादा एक गंगा जमुना तहसीब को KCR साहब ने आगे लेकर चला, खुशी थे लोग। लेकिन कांग्रेस ने ये बताए हम सेक्युलर है, ये बताए हम माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे, ये बताए हम 4000 करोड़ रुपए बजट में देंगे, इमाम मौसम का तनख्वाह 5000 से 12000 करेंगे, ओवरसीज स्कॉलरशिप KCR साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 लाख देंगे। ऐसा इतने बात बोले 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 लोगों को बोले कि ये रेवंत रेड्डी को कोई उसको भरोसा नहीं था किसी को। राहुल गांधी को लाए वहां से, सोनिया गांधी को लाए वहां से, प्रियंका गांधी को लाए। ये हमारा जिम्मेदारी है, आप इनको जिताइए, ये जो भी वादा किए इसका निभाने का हमारा जिम्मेदारी है बोल के सोनिया गांधी चिट्ठी लिखी घर घर को। राहुल गांधी आके यहाँ पर बहुत बात बोले, फिर जीतने के बाद उन्हें पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कोई एक बात भी निभाए क्या? KCR साहब ने गरीब मुसलमान लड़कियों का शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पूरी दुनिया में पहली बार तेलंगाना में KCR साहब लाए। 1-2 शादी नहीं, 1,12,000 शादी KCR साहब ने कर चुके हैं, मदद किए थे शादी मुबारक के नाम पे। ये लोग क्या बोले, नहीं KCR साहब 1 लाख दे रहे, हम 1 तोला सोना भी मिलके देंगे। सोना छोड़ो, शादी मुबारक का चेक भी नहीं आ रहा, बेटे पैदा होने के बाद आ रहा, 1-1 साल डिले चल रहा, वो चेक भी शादी मुबारक का नहीं मिल रहा। ओवरसीज स्कॉलरशिप का ऐसा ही बोले, KCR साहब ने इस दुनिया में पहली बार अपने मुसलमान बच्चे, दलित बच्चे, गिरिजन बच्चे अमेरिका में लंदन में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए का चेक दिए। ये कोई सरकार, कोई हुकूमत इंडिया में सोचा नहीं, सिर्फ KCR साहब ने सोचे। लेकिन कांग्रेस ने क्या बोली, अरे तो KCR साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 देंगे। लोग समझे कि देंगे, लेकिन हुआ क्या, 25 छोड़ो, जो 20 लाख का स्कीम है वो भी बंद हो चुका है, वो भी बंद हो चुका है। 4000 करोड़ बजट देते बोले, KCR साहब तो 2000, 2500, 3000 तक गए थे। ये लोग बोले 4000, लेकिन दिए 1000। 4 आना दिए, 12 आना
खाली है, रिलीज नहीं करे। बोला तो 4,000, पिछले साल कितना दिया? 1,000। वो 1,000 भी किसके लिए मिले मालूम है? टिमरिस के जो स्कूल था वहां की तनख्वाह बच्चों के खाने के लिए दिया, और कोई स्कीम में 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे रमजान का तोहफा भी बंद हो गया, केसीआर किट बंद हो गया, बच्चों का फीस रिएम्बर्समेंट बंद हो गया, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम खत्म हो गया, इमाम मौसम साहब लोगों का तनख्वाह भी रिलीज नहीं हो रहा। वो भी बीआरएस आवाज उठने से क्या हो गया, रमजान के महीना हो गया, कब देते सैलरी बोल के बीआरएस ने आवाज उठाए तो जब 4-4 महीने 5-5 महीने का रिलीज हो रहा था। बोला था कि 12,000, लेकिन दे रहा जो केसीआर साहब दिए वही 5,000 मिल रहा है। मैं आप लोगों से याद दिलाना चाहता हूं, और बहुत बड़ा लिस्ट है कांग्रेस का। ऐसे बोले हम बेरोजगार युवा के लिए 10-10 लाख रुपए देते बोले कांग्रेस। अब 20वां महीना चल रहा, एक मुसलमान बच्चे और बच्ची के लिए लोन मिला 10 लाख, एक आदमी को मिला। बात तो करोड़ों में है, काम पकौड़ी में है। दोनों का एक ही है। वो दिल्ली में बड़े भाई का, ये गली का छोटे भाई का रास्ता एक ही है। वो बड़े भाई के सरकार में कोई मुसलमान को जगह नहीं मिला। ये रेवंत रेड्डी सरकार में भी 20 महीने हो गया, आज एक मुसलमान को मौका नहीं मिला। क्या एक आदमी इस पूरी तेलंगाना में मिनिस्टर बनने का काबिल नहीं है क्या? क्यों नहीं दिए आप लोग? बात तो बोलते सेक्युलर, आप सेकंड एक्सपेंशन भी करे। लोग बहुत उम्मीद से देख रहा था कि कम से कम इसमें तो भी देंगे, उसमें भी आप हाथ दे दिए, वहां भी नहीं दिए। केसीआर साहब के साथ एक ही मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी करे तो वो दूसरी मिनिस्टर है हमारे महमूद अली साहब, 2 में भी थे। आज 16 में एक आदमी नहीं मिल रहा था क्या तुम्हारे को? राम भाई नहीं थे, मैं ही नहीं था कैबिनेट में, लेकिन महमूद साहब साथ था केसीआर साहब के साथ। केसीआर साहब इतना सेक्युलर लीडर है, इसके पहले जब भी कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर बने तो मुसलमान बने तो उनको माइनॉरिटी वेलफेयर पोर्टफोलियो देते थे। केसीआर साहब क्या करा? मुसलमान को होम मिनिस्टर दिया, हिंदू को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया। ऐसे सेक्युलर लीडर है केसीआर साहब ने। बात ये है, अब ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने दो, जुबली हिल्स का होने दो, ये नहीं कि हमारा हुकूमत आएंगे हम कुर्सी में बैठेंगे, लेकिन बात यह है जो वादा टूटे सो आदमी को सबर सिखाना का जिम्मेदारी अपना होता है। 20 महीना बोले तो 1/3 हो गए, 60 में 20 हो गया, 1/3 खत्म हो गया। फिर बाकी दिनों में तो उनको मालूम होना चाहिए लोग क्यों हराए बोले तो तू 1 तोला सोना नहीं दिया, बच्चियों को स्कूटी नहीं दिया, बेवा लोगों को 4,000 जो पेंशन देना था वादा करके नहीं दिया है आप, और मुसलमानों को 4,000 करोड़ बजट बोल के आप नहीं दिए, सब प्लान बोल के आप नहीं दिए, हमारे इमाम मौजम को 12,000 देते बोल के आप नहीं दिए। ये पूरा आप एक काम भी, एक बात भी नहीं निभाए, इस वास्ते आप हम लोग को हराए। अब तो भी आप आंख खोलो, जितना वादा करे वो करो बोल के हम सबर सिखाना चाहिए। अगर से कोई मुसलमान वोट डाले क्या बोलता? अरे भाई मैं पूरा वादा तोड़ दिया, एक भी काम नहीं करा, फिर भी मेरे को वोट डाला बोलता ना उन्हें। फिर उसका आंख खोलना है, उसको सबर सिखाना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। कैसा मालूम होता? मालूम ऐसा होना कि कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो गए जुबली हिल्स में, जब उसको मालूम होता हमारे माइनॉरिटीज का क्या दम है, उनको मालूम होता है। अरे क्या दिया भाई कांग्रेस ने? अपना हैदराबाद के जीडी मिटला में वाक़ HDFC बैंक के ATM मराकज़ में 3 ATM मशीनों को आज सुबह चोरों ने गैस कटर की मशीन से काट कर रकम लूट कर फरार हो गए, जबकि चोरी की गई रकम का अंदाज़ा अभी बाकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। हुकाम ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो सेफ्टी सिस्टम्स, कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर नोटिस जारी किए जाएंगे।
गुजरात के वडोदरा ज़िले में महीसागर पर वाक़ पुल टूटने से कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 या 6 को बचा लिया गया। कई गाड़ियां नदी में जा गिरी। इस हादसे में रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। गुजरात के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म मोदी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने महलूकीन के लवाहिकीन को 2 लाख और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया, जबकि गुजरात के वज़ीर आला ने इस वाक़े की जाँच के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। पुलिस वाला ना पड़वा दे पण दोयडा बोयडा हे तमा का ना पड़े हां ओ भैलू हम आपन तो काम करता आवडे नेलू काय नासो તમે એકલ બાર છે કારણ કે પોલીસ તેમાં બધાય ગાડીઓ બાડીઓના બધાય નહીં બાબા હેડા આપણે નીકળી રહેલા હવે તમે કઈ જવાનું ના નીકળે યાર અમારે ગંભીરા જવાનું તો હેડા તો આપણા સિંગલ ઉપર ને જવું પડે અહીં તો ઉભા રહે ઘેર જઈને ઉતાર આ જો આપણે થોડાક વેલા गुजरात में पेश आया खौफनाक पुल हादसे पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्हें तंज करते हुए कहा कि ये डबल इंजन गुजरात मॉडल की एक और शानदार मिसाल है। उन्होंने याद दिलाया कि मोरबी पुल हादसे में भी 140 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे और अब एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। KTR ने गुजरात और बिहार में पुलों के बार बार गिरने पर तशवीश जाहिर की और मुतालबा किया कि इस हादसे की तहक़ीक़ात नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या किसी मोतबर इदारे के ज़रिए की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हैदराबाद ज़िला कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने गोशा महल गर्ल्स माइनॉरिटी स्कूल और यतीम बच्चों के अक़ामती मरकज़ का दौरा करते हुए तालीमी और ग़िज़ा के मियार का जायज़ा लिया। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी है कि तलबा को दिलचस्पी के साथ मियारी तालीम फ़राहम करें और रोज़ाना मेन्यू के मुताबिक मियारी खाना दिया जाए। कलेक्टर ने कंप्यूटर लैब को फौरी तौर पर कारगर बनाने, 100% नताइज के हुसूल और बच्चों को वक्त पर किताबें यूनिफॉर्म फराहम करने की भी हिदायत दी। बाज़ा उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़रिए एहतमाम अनीसुल ग़ुरबा यतीम खाने का भी मुआयना किया। बच्चों के कमरों और सहूलतों का जायज़ा लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, सेहत की जांच की जाए और इनसे मोहब्बत से पेश आया जाए। उन्होंने अमले को तमाम काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि बच्चों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन हुसैनी आलम हैदराबाद ने शोबा सियासियत के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद होने वाले एक रोज़ा कौमी मुज़ाकरे की ब्रोचर की रस्म इजराई अमल में आई। इस कौमी मुज़ाकरे का उन्वान सबाल्टन पॉलिटिक्स एंड एक्टिविज़म इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ रखा गया है। इस इल्मी व तहक़ीक़ी प्रोग्राम में मुल्क के मुमताज़ प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और मुहक़्क़िक़ीन शिरकत करेंगे। तक़रीब में महकमे कॉलेज एजुकेशन की जानिब से मोहतरमा प्रोफेसर बाला भास्कर जॉइंट डायरेक्टर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए, जबकि सदारत प्रोफेसर CH अप्पिया चिन्नम्मा प्रिंसिपल ने की। इस मौके पर डॉक्टर फरहाना सुल्ताना ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और डॉक्टर मोहम्मद गौस सदर शोबा सियासियत ने प्रोग्राम के इंतज़ामात की निगरानी की। Telangana government degree colleges, working in our HOD. So many places I visited, so many colleges I visited. But when I come to Hussaini Hall, this is how I do not know. But you have a very special place. First of all, because you are all the first years, I am congratulating you all for choosing this college to pursue your undergraduate program. Definitely, we as the Commissioner College of Education and the ड्राइंग रूम में लिख के लगा लीजिए, ज़मीर मगरिब है ताजिराना, ज़मीर मगरिब है ताजिराना, ज़मीर मशरिक़ है राहिबाना। ये जो कपलेट्स हैं, it has been translated into many languages including Spanish, जहाँ कोई उर्दू नहीं समझता। बहरहाल ज़मीर मगरिब है ताजिराना,
ज़मीर मशरिक़ है रायबाना, वहाँ दिगर को है लहजा लहजा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। तो यहाँ आप ज़माने को बदलने के लिए आए हैं। इकबाल ये कह रहे हैं नौजवानों से, तालिब इल्मों से कि बस एक घड़ी 3 साल आपके टिक टिक बदलने का नाम नहीं है, बल्कि जब आप 2028 में यहाँ से निकलेंगे, जब आप इस गेट से बाहर जाएंगे तो आप एक नए इंसान की शक्ल में बाहर जाएंगे। इकबाल के पैगाम आपको दे रहे हैं कि यू आर जस्ट नॉट इन 2035। जिला संगारेड्डी कलेक्टर पी प्रवीण्या ने आज जहीराबाद मंडल के मौजे होती में वाक़ई कस्तूरबा गांधी गर्ल्स अक़लियती स्कूल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने असातिज़ा की हाज़िरी, क्लासरूम्स, तलबा की किताबें, यूनिफॉर्म और तालीमी मियार का जायज़ा लिया। कलेक्टर ने असातिज़ा को हिदायत दी है कि रियाजी, साइंस और अंग्रेज़ी जैसे मज़ामीन को दिलचस्प अंदाज में पढ़ाया जाए ताकि बच्चों में ख़ुद एतमादी बढ़े। कलेक्टर ने स्कूल की सहूलियात, किचन, खाने के मियार और सफाई का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने तलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया और खाने के जायक़े व मियार का जायज़ा लिया। स्टोर रूम के मुआयने के दौरान कलेक्टर ने ज़रूरी अशिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के तरीक़ेकार और रिकॉर्ड रखने पर जोर दिया और असातिज़ा को मज़ीद ज़िम्मेदारी से काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर जहीराबाद तहसीलदार दशरथ, RDO राम रेड्डी और स्कूल असातिज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला करीमनगर में चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ अमल में लाया गया, जो मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के नारे के तहत ये मुहिम 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के दफ्तर पर मुनक़िदा प्रेस मीट में तलबा ने खिताब किया। तलबा ने तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी में शजरकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में तलबा के सरपरस्तों के अलावा ख़वातीन व हज़रात की कसीर तादाद मौजूद थी। देख वहाँ घर में नहीं है, मैं अब दूर हूँ, मैं आया तक लेकिन आज लोगों ने दरख्तों को काटकर, कचरा बनाकर और प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इस खूबसूरत माहौल को खराब कर दिया है। मुझे इस बचपन से ही समझाया गया है कि अगर हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारी बढ़ेगी और तब टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और बारिश बहुत कम होगी। मैं अपने दोस्तों को भी ये बातें बताती हूँ कि ये छोटे छोटे जिम्मेदारियां निभाने से हमारे एनवायरनमेंट की हिफाजत आसान हो सकती है। अब सवाल ये है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, कचरा हमें डस्टबिन में फेंकना होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा, अपने स्कूल और घर को साफ रखना होगा और बिजली का इस्तेमाल कम करना होगा। Heads and soil, Hearts with India, Seattle Plantation Act 2025. Let's make it successful. Let's find more and more green. मेरा किरदार, my role in protecting the environment. इससे पहले कि
के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मेरा क्या किरदार है, हमें ये समझना होगा हमारा एनवायरनमेंट क्यों खराब हो रहा है। आज हम सब देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। इसकी मेन वजह है गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारे सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होता है और नई बीमारियां पैदा करता है। ग्रीन हाउस गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, जो गर्मी को रोकती है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ये ओजोन लेयर हमें सूरज की किरणों से प्रोटेक्ट करता है और जिसकी वजह से कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और ड्रॉट्स और फ्लड्स आ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर ट्रीज काट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा। Now the question is, what is my role in protecting the environment? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, सोलर पैनल्स और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त 5 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो। गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की जगह सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करना चाहिए। इसीलिए जमात इस्लामी के चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्रीन मिशन लॉन्च किया है, इसमें 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। 25 जून से 25 जुलाई तक हम सारे बच्चे पेड़ लगाएंगे और हमारे देश को आजादी दिलाएंगे पोल्यूशन से। हैंड्स इन सॉइल, हर्ट्स विद मीडिया, फ्लाई प्लांटेशन ड्राइव 2025। लेट्स मेक इट सक्सेसफुल। देयर इज नो प्लैनेट बी, लेट्स प्रोटेक्ट इट, नॉट वन वी हैव। जज़ाकल्लाह। వేడి పెరిగింది, చెట్లు తక్కువ అవుతుంది, వానలు తగ్గిపోయింది, పరిశుభ్రమైన గాలి తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మనం ప్రకృతికి అందరూ చెట్లు నాటడం. ఈ ప్రోగ్రాంలో పాఠశాల, మదర్సా, మస్జిద్, పార్క్ చెట్లు నాటడం, స్కూల్స్ లో గ్రీన్ పోర్ట్రేట్ చేయడం, చెట్లు ప్రకృతిగా వచ్చి పోస్టర్ స్పీచెస్, పోస్టర్స్, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. మనం అందరం కలిసి చెట్టును నాటి ప్రముఖతకి కాపాడి. ధన్యవాదాలు. हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक खातून ने अपने शौहर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया। यह वाक़या सैफ़ी कॉलोनी वट्टापल्ली में पेश आया। मकतूल शेख मोहम्मद मजदूर था और शराब नवेशी का आदी था। वो रोज़ाना नशे में घर आकर बीवी को हरासा करता था। हरासानी से तंग आकर बीवी ने गुस्से में आकर इसके सर पर वज़नी पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। आज सुबह 11:30 बजे हमारा को डायल 100 कॉल मिला। ये वट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी की मार लगा, नीचे गिर गया बोल के हमारा फोन आया। वो फोन का ऊपर इंफॉर्मेशन लेके हम इधर पहुंच गए। वट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी, छोटा घर है इधर, शेख मोहम्मद बोल के है, इसका उम्र 30 साल है। हम आके देखने तक उन्हें मर गए। कैसा मर गए बोले तो हम इंक्वायरी करा, इसमें उनका वाइफ शेख फरीदा, उनका ओन वाइफ है, उन्हें मारे बोल का हमारा मालूम हुआ। अभी ऑलरेडी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। ये शेख मोहम्मद को उनका वाइफ ही मारे बोल के मालूम हुआ। अभी आफ्टर इंक्वायरी केस बुकिंग कर रहे उनका वाइफ का ऊपर। हमारा को मालूम हुआ क्या बोले तो इन्हें हमेशा पी के रहता, बीबी के बहुत सता रहे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मारे बोल के यहाँ का जगह में आने के बाद मालूम हुआ। अभी इसका ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। डिसीज्ड शेख मोहम्मद जो है, इन्हें थोड़ा काम नहीं कर रहे। इन लोग इधर आके भी एक 6 महीना हुआ, 6 महीने से बिना काम घर में बैठना,
बच्चों को गाली देना, बीवी की सताना, मारना। बीवी बोले, मैं मारे बोल के बोले अभी इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं, अभी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहे हैं आप लोगों को। अभी तो 100% बीवी मारे बोल के मालूम है। अभी दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। I will finalize the case. Okay, thank you. मेट्रो जिनकी गली में रहने ऐसी लड़ाई झगड़ा करके बुला के भाइयों को खूब मार के बेहोश करके मेरे भाई को फेंक के कमरा खटका लगा के भाग गए थे। हम लोगों ने जाके देखे भैया भाभी क्या कर रहे बोलते थे, भाई बेहोश पड़े हुए, भाभी भी नहीं है ना, भाभी के बच्चे ना पूरे गायब। फिर जाके 2 महीने अच्छा गायब हो गए। उसके बाद आए, पलट के आए के बाद में फिर मैं नहीं करती अम्मा, ये करती हूँ वो करती हूँ, माफी मांगती ये करती हूँ बोल के फिर है तो अच्छा जान दो हर मियाँ बीवी में होता ना बोल के हम मिला के छोड़ दिए। फिर ये चीज करके 5-6 बार मेरे भाई को बहुत मारा करे। उसके बाद में मेरा भाई जब कमजोर हो गया तो यहाँ पर लेकर आके शादी हो के कितने साल हो रहा, 2012 में हुई शादी उनकी। जब से जो 1 साल अच्छा रहे उसके बाद से बताना शुरू करे उनका रंग। अब जो मेरा भाई कमजोर होने की वजह से उन लोग मेरे भाई पे गणेश डाल के मारे हुए। मेरे को इंसाफ होना मेरे भाई को, और उसकी हिम्मत कौन है, उसके पूरे भाइयां होना उसके हम लोगों को। बस उन्होंने हसन्ना घर में रहने वाले, हसन्ना घर के उनके पूरी फैमिली। जब लड़ाई हुई अम्मा करने जाते, अम्मा खाना भर के भेजती, भाई आता मारता, अम्मा आती। क्या घर हम शाला है लोगों का, किसकी भी औलाद को ऐसे मारते रहते। आज हमारा भाई गया, कल के दिन किसी की भी औलाद जाती, भाई खामोश बैठे रहते नहीं होता, आवाज उठाना जरूरी। आज हमारे भाई को इंसाफ होना। बस आज हमारा भाई मारा, हमारे दिल को पूछो कितनी तकलीफ है, किसको भी नहीं मालूम। उसका क्या है, उसको आदमी छोड़ पकड़े, पहले शादी हुई थी कहते उसकी, उसका शोहर छोड़ दिया। तो हमारे भाई को देखिए, हमारा भाई पसंद करके कर लिया, नको करो मतलब भी कर लिया। आप भुगत गया, मर गया, अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बस हमारे इंसाफ है ना, दूसरी शादी है उनकी, उनको इंसाफ होना मेरे को। बस मेरे भाई को जैसा मारे ना, उसके पूरे भाइयों को उठाना, उसके घर वालों को पूरे को उठाना, मेरा ये है। बस इंसाफ होना, कड़ी से कड़ी सजा होना और उसको फांसी की सजा होना। जो काम मिला वो कर लेते थे, वो काम कर लेके आते थे, घर में पी लेते, खा लेते, अपनी जगह रहते। बच्चों को हर बात मारता, नसीहत देने के लिए मारता है ना। मेरा भाई भी नसीहत देने के लिए औलादों को मारता था। वो माँ से देखा नहीं गया, वो केस का पैसा क्या आ गया कि अम्मा को मजाक लग गया, मेरे भाई को मार के छोड़ दी। वो बच्चे का रेप केस था तो उस पे हम लोग आज कर रहे थे। अम्मा तो चूड़ी पहन के बैठी हुई थी, हाँ जान दो बोल के, हाँ पैसे दिए थे। अम्मा जान दो, उसका कौन था कि नहीं मालूम। अम्मा जान दो बोल के बात दबा रही थी। हमारा भाई ऐसा होने नहीं दिया। मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल के दिन किसी के भी बच्चे के साथ होता बोल के आवाज उठाया तो पैसे मांगा। छोटा उसका बड़ा बेटा मांगा पैसे, अम्मा बेटे मांगे पैसे, तो पैसे मिले तो पैसा हमारा भाई नहीं दिया उन लोग के हाथ को, तो मेरे भाई को ऐसा गणेश डाल के मारे लोग। बस मेरे को इंसाफ होना और कुछ भी ना। मेरे भाई की मैयत उठने से पहले इंसाफ होना। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हिंदुस्तानी सबी खान को एप्पल कंपनी का नया CEO किया गया मुकर्रर। छह नए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की शिरकत, दी मुबारकबाद। कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया है धोखा, इसे जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में सबक सिखाना होगा, अक़लियती कायदीन से हरीश राव का खिताब। गैस कटर की मदद से हैदराबाद के 3 ATMs में की गई चोरी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। गुजरात में पुल टूटने से 9 अफराद हलाक और कई जख्मी, वज़ीर आला ने अफसोस का किया इजहार। गुजरात और बिहार में बार बार पुल टूटने के वाक़यात पर KTR का तंज, तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद।
मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।